اچھا جی، اب ہم یہاں سے کوئی فیل لیتے ہیں. اچھا جی. یہ دیکھیے، یہ ہے یعبدون. ٹھیک ہے. یعبدون ماضی ہے یا جی جی مضارع ہے؟ سر مظاہرے. مضارع ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا؟ سر یا وہ تو یعبدو. اس کا ماضی کیا ہو سکتا ہے؟ سر سر ذہن میں نہیں آ رہا. دیکھیں. اچھا یہ بتائیں، یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ کتنے حرف کا فعل ہے؟ سر مزید فی ہے، چار ہے. چار حرف ہیں. کیسے پتہ چل رہا ہے کہ چار ہیں؟ ام، سر یا ودو سے. یا کوئی نہیں، آپ کاؤنٹ کر رہی ہیں اور اس کو دیکھ کے چار حرف، اس کو ملا کے چار حرف بن رہے ہیں، ایسے ہی. جی سر اپیرنٹلی. نہیں، ہم جو آ، جب مطلب یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی فعل کتنے حرف کا ہے، تو اس میں ماضی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مضارع کو کنسیڈر نہیں کرتے. یعنی جو علامت مضارع ہے نا کیا، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو اوکے سر. ہاں، اس کا ماضی کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ اب آپ نے سارے اوزان پڑھ لی ہیں، یونی میں سے کسی نے، یا چلیں اس سے پہلے ایک ہم اسٹیپ اور بیچ میں لے آتے ہیں. یا بودو جی آپ نے جی کہا. یا بودو کا جی. وزن کیا ہے؟ فا عین لام کی صورت میں کیا وزن؟ ام، سر یفعلو. یفعلو، بالکل ٹھیک ہے. اب یفعلو ثلاثی مجرد کا وزن ہے یا مزید فی کا؟ سر مزید فی کا ہی لگ رہا ہے مجھے تو. دیکھیں، اگر یہ مزید فی کا یفعلو. ہو، مزید فی کا اگر ہو تو ایک ہی پاسبلٹی ہے نا کہ اس میں کتنے حرف ہوں گے. مطلب عین با اور دال یہ تین ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اگر ہم جی یہ جی. فرض کریں کہ مزید فی کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کوئی حرف مضارع میں مسنگ ہوگا. وہ جیسے او. جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اگر سٹارٹ میں حمزہ ہو تو وہ مضارع میں گر جاتا ہے. تو اگر ہم وہ والی جو کنڈیشن ہے اس کو بھی فرض کر لیں یہاں پہ، یہ بھی اگر ہم کر لیں تو میکسیمم یہ کتنے حرف کا بن جائے گا یہ فعل؟ چار حرف کا. عین با دال میں جی اگر جی ہم فرض کر لیں کہ جی ایک حمزہ مسنگ ہے، وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں ماضی میں، آب ادا کر لیتے ہیں لیٹ جی سے. چار حرف سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتے نا اس میں، جس طرح کا یہ جی سر. وزن ہے. اب اس میں دوسری بات یہ ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک فعل چار حرف کا ہے تو اس کا مضارع ہمیشہ کس سے سٹارٹ ہوگا؟ علامت مضارع پہ کیا حرکت ہوگی؟ سر چار حرف والا ضمہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ضمہ سے سٹارٹ ہوگا. اب یہ تو کلیئر ہے نا کہ یا بدو میں پانچ یا چھ حرف تو ہو ہی نہیں سکتے. اگر جی ہمیں جی. یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ مزید فی ہے تو پھر یہ چار حرفی ہی ہو سکتا ہے. اگر یہ چار حرفی ہو تو اس کے یا پہ ضمہ ہونا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یس. یہ والا خیال غلط ہے. صحیح ہے نا؟ ٹھیک کہ ٹھیک. ضمہ نہیں، اس کا ٹھیک مطلب سر. ہے چار حرفی نہیں ہے. تو اب یہ کتنے حرفی ہوگا؟ جی جی. سر پھر تین. تین حرفی ہوگا. اب جب یہ تین حرفی ہے تو اس کا ماضی کیا ہو سکتا ہے؟ ثلاثی سر مجرد کے ابواب ابودا. میں دیکھیں. ہاں، دو پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کروما کے وزن پہ آ رہا ہو، کروما یکرومو، تو اس صورت میں ابود یا ابودو ہوگا. اور جی دوسری کیا پاسبلٹی ہے؟ سر ین سروپ کے ساتھ تو نہیں ہے یہ نہ آبادا یا ینصرو پہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ یا بدو. ینصرو سے، ینصرو سے چونکہ یہ جی یفعلو ہے، وہ یا کروما میں آتا ہے جی یا جی. نصارہ میں آتا ہے. ان دونوں کے مضارع میں ضمہ ہے نا، تو یہ جی نصارہ سر. سے ہے. تو اس کا ماضی کیا ہوگا پھر؟ سر آبادا. عبادہ. اور وہ ویسے بھی ذہن میں رکھیے کہ جو کروما ہے نا وہ ایک تو بہت کم استعمال ہوتا ہے. مطلب آپ جو
मेजॉरिटी के अफ़ाल देखते हैं वो तीन अब्वाब से यूज होते हैं। फतह सॉरी वो नहीं है, दरबा, नसरा और समिया, ये तीन सबसे ज्यादा ओके यूज होते सर। हैं। ठीक है, जो फतह का ठीक पैटर्न सर। है वो, यानी उसके मैं यूजेज के एतबार से बता रहा हूँ। अगर हम बिल्कुल टॉप में देखें तो नसरा का नंबर सबसे ज्यादा है, फिर समिया है, फिर परसेंटेज में दरबा आता है, नंबर 4 पे फतह आता है, नहीं फतह कम यूज होगा, और करोमा तो बहुत ही कम। ठीक है, और दूसरा उसमें ऑलराइट सर। एक और चीज जी है, जी। अगर कोई फेल करोमा से आ रहा है तो उसका मीनिंग एडजेक्टिव वाला होगा हमेशा। जैसे करूमा का ओके मतलब है सर। करीम होना, सखी होना। ठीक है, इसी तरह जी हसूना है खूबसूरत होना, जमूला जमील होना। ठीक है, ओके सर। कबूहा है बदसूरत होना। इसी तरह जैसे है करूबा करीब होना किसी चीज का, तो आप देखें इन सब में एडजेक्टिव वाला मीनिंग है, सिफत वाले मानी आ। सही। ठीक है, तो यस सर। अगर इससे हट के कोई फेल ही नहीं आपको, यफउलू पे कोई फेल नजर आता है और उसमें इस तरह का कोई मीनिंग नहीं है, जैसे ये इबादत करना है, इसमें कोई एडजेक्टिव वाला मीनिंग तो नहीं आ रहा, तो एग्जैक्टली जी सर। वो हमेशा फिर नसारा से ही होता है ऐसा लफ्ज। ठीक है, तो इस तरह के कुछ ओके सर। क्लूज होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं किसी लफ्ज का वजन। तो ये अबदा या ठीक ठीक बुदू है। सर। अब ये बताइएगा इसमें सीगा कौन सा है या बुदू में, ये मुजारे का कौन सा सीगा है? सर मुजारे में वो था सर, ये वाहिद मुजक्कर गायब भी है मेरे ख्याल में। वाहिद मुज़क्कर गायब तो आपने बनाया था ना, वाहिद मुज़क्कर गायब होता तो वाहिद मुज़क्कर बनाते तो ना। या बुदू वाहिद मुज़क्कर गायब है, या बुदूना क्या है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, वो पूरा दिखना है। हम्म। सर एक तो था ना वो, ता वाला था। अम, सर मुझे मेरे ज़हन में आ रहा है, उसमें वाव नून तो है पर शुरू में ता था। या हम्म। वाला याद नहीं आ रहा। ताबुदूना और अम, याबुदूना में क्या डिफरेंस है? दोनों यूज होते हैं। जी सर वही। सर या वाव नून वाला मेरे ज़हन में आ रहा है, पर वो था चलिए जमा इससे मुज़क्कर ये मुखातिब बताएंगे। वाला ज़हन में आ रहा है पर। यस ठीक है, वाव नून आता है जमा मुज़क्कर के केस में। अब अगर स्टार्ट में ता है तो मुखातब है, अगर स्टार्ट में या है तो वो कौन सा पर्सन होगा? सर जमा मुज़क्कर गायब होगा फिर। गायब है, यस। या आ रहा है तो वो थर्ड पर्सन ठीक है, ठीक। ता है तो वो सेकंड पर्सन है। ठीक है, इसके एक दफा आप जरा सारे लफ्ज जी सर। बताइएगा, बिल्कुल स्टार्ट से वाहिद मुज़क्कर गायब से एंड तक। ठीक है सर। बेस फॉर्म क्या है इसकी, या बुदू? जी जी आप तो। सर या बुदू, फिर अ, या बुदान, या बुदानी, अलिफ नून लगा के। ठीक है। फिर या बुदून, फिर सर एक मिनट में बेस फॉर्म लिख लूँ, मुझे भूल जी जाती है। जी लिख लें इजी होके कर लें। या बुदू। ये सर मैं फिर अगला वैसे बता देता हूँ इरम, आप इस पे देखिएगा यनफाउ। ठीक है, जो अगला लफ्ज है यनफाउ, ये मैं आपसे पूछूंगा, और उम्मे कुलसूम आपने तुनब्बी ऊना का बताना है। ठीक है, तो आप उस पर जरा गौर कर लें और लफ्ज अपने पास बना लें। और रमजान अ, आपसे ये युशरिकूना के बारे में। जी तहरीम सर प्लीज। मेरा क्या बोला है आपने? सर यनफाउ, सर कौन सा वर्ड? यन ये यनफाउ फाऊ। यनफाउ, यस। ये अच्छा। ठीक है, यन फाऊ। आसान है। सही है। जी 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 तहरीम, कंटिन्यू कीजिए। सर इसका पहला हो जाएगा यही या बुदू आ जाएगा, वाहिद मुजक्कर गायब। ठीक है। फिर या ठीक है। बुदानी, फिर या ठीक है। बुदूना, फिर ताबुदू, ठीक है। फिर ताबुदानी, ठीक है। फिर या रख के आखिर वाले को साकिन करके अ, सर या बुदना, या बुदना, ठीक है। फिर दोबारा ताबुदू आ जाएगा। ताबुदू, ठीक फिर है। ताबुदानी, ठीक फिर है। ताबुदूना, सही। ताबिदीना फिर आ जाएगा। फिर ताबुदीना, दोबारा बा पे ताबुदा। दम्मा है ना? जी ताबुदीना, जी जी। ठीक है। जी वाहिद मुन्नस मुखातिब। हम्म। फिर इसके बाद सर वो
दोबारा वो आ जाएगा ताबुदानी। ठीक है। फिर फिर ताबुदना। ठीक है। फिर मुतकल्लिम में आबुदू। फिर नाबुदू। बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। मीनिंग इसका क्लियर है ना? इबादत करना। जी जी सर। तो याबुदूना का मतलब क्या होगा? ये सर ज्यादा लोगों ने हाँ, जमा वो इबादत करते हैं। में। ठीक है। यानी वो इबादत करते हैं मिन दून अल्लाह, अल्लाह के सिवा, माँ यानी उनकी जो ला यदुर्रुहुम, ना उनको नुकसान दे सकते हैं, वला यनफाउहुम, ना उन्हें नफा दे सकते फायदा दे हैं। ठीक है, सकते जी सर। बिल्कुल सही। जी इरम प्लीज, यनफाउ, माजी मुजारे। ये सर मुजारे है शायद। मुजारे है। और ठीक है, वजन क्या है इसका? कितने हर्फ का है? सर ये वो रूट वर्ड बताऊं सर? नहीं नहीं, वजन इसका। वजन फेल कितने बताऊं? हर्फ का अच्छा। है? यनफाउल। हम्म। अच्छा चलें, ये बताएं सीगा कौन सा? सीगा कौन सा है? अच्छा। वो सर वाहिद वाहिद मुअन्नस है सर? वाहिद मुअन्नस नहीं कौन नहीं सा मुअन्नस? नहीं गायब मुखातब कौन सा? नहीं मुखातिब नहीं है सर, वो है, गायब है। फिर बोलिएगा, यानी मुकम्मल सीगा बोलिएगा, क्या होगा? यनफाउहुम है ना? इसका नहीं, होगा यनफाउ है बेसिकली, हाँ। यनफाउ है। तो यनफाउ में ये वो है सर, वाहिद मुजक्कर गायब है। वाहिद मुजक्कर गायब है, ठीक है। और वजन क्या है हाँ। इसका? यानी फाइन लाम रखें अगर वजन इसमें, तो क्या वजन होगा यनफाउ का? यनफाउल। रूट वर्ड्स की जगह फाइन लाम प्लेस करें ना। अच्छा। रूट वर्ड इसके यनफाउ है ना? यानी हम्म। चार वर्ड हैं सर इसके। चार कैसे? या नून फा नहीं आइन है। देखें, अभी तहरीम ने जब बात बताया था तब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आप अलामत मुजारे को नहीं कंसिडर करते कि फेल कितने हाँ। हर्फ का है उसमें, ठीक है। तो यनफा होगा ना इसका, तो वो माजी। चलें, वो हम बाद में देखते हैं। इसका मुझे वो बताएं कि तीन हर्फ कौन से हैं जो हरूफ असली होते हैं, रूट वर्ड कौन सा है, कौन से नफा तीन नफा हर्फ? उ है नून। नून फा अ, आइन है। नून फा हम्म। आइन। ठीक है, नून फा आइन है। अब नून फा आइन की जगह फा आइन नाम रखें तो वजन क्या बनेगा? यन हाँ यनफाउला। यनफाउल। नहीं, लिख के कर लें। नून की जगह अच्छा फा अच्छा। रखें, फा की जगह आइन लिखें, आइन की जगह लाम लिखें। नून फा आइन को फा आइन लाम से रिप्लेस करें तो क्या लफ्ज बनता है? एक मिनट सर। सर यनफाउल। आप नून क्यों बोल रही हैं इसमें? अच्छा हाँ। नून रूट का है ना,
पहला हर्फ है। जी जी, रूट का है। उसकी जगह जब वजन अच्छा, या की लिखेंगे तो आवाज उसकी नहीं जगह आएगी ना, फा नफअल। लिखेंगे ना। हाँ। सर फ़अला या फ़अलू? दोबारा बोलिए। फ़अला या फ़अलू, यही है नहीं, मुझे सिर्फ शायद यन सर। फाउ का बताएं। यनफा। एग्जैक्ट इस लफ्ज का। हाँ। इसका वो बताऊं, रूट वर्ड्स बताऊं या वो माजी बताऊं? अरे इसका नहीं, वजन बताइए बस। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन ना। जी सर। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज, अब आपको मालूम है कि इसमें जो रूट है वो नून फा आइन है, ठीक है। अब अगर एक जी। लफ्ज है नाफे, तो नाफे में जायद हर्फ कौन सा है, जो रूट के अलावा है, अल जो रूट में निशान। अलिफ अलिफ। जायद है ना। हाँ, तो अगर मुझे जी नाफे का वजन लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा कि मैं ये जो नून फाइन है इनकी जगह फाइन लाम प्लेस करूंगा। वजन एक ही तरीके से बताते हैं ना, कि रूट की जगह फाइन लाम जो तीन लेटर्स हैं वो रखते हैं। जी। तो नाफे का तो वजन हम क्या नून की लिखेंगे। जगह फा, ठीक है। नून की जगह फा आ जाएगा। फिर और अलिफ आएगा। फा की जगह आइन आ जाएगा। हाँ। ठीक है। फाइल आ जाएगा ना। फाइल। नाफे का वजन होगा हाँ। फाइल, ठीक है। फाइल। अच्छा, सही है। इसी तरह इस लफ्ज का वजन बताएं मुझे। आ, लेट इसका से हम होगा। इसको नफ उन कर लेते हैं। हाँ। हम्म, इसका भी इसका फाअलुन। फालुन। ठीक है। इसका वजन बताइए। ये सेम रूट से बता रहा हूँ, ठीक है। जी। नून फाइन से ही बता रहा इसका होगा नफ अ, नफ हूँ। नफ आलू। ये नहीं देखें, पहला हर्फ मीम नहीं है। नहीं, नफ नहीं सर, हाँ सॉरी। मा, इसको भी उसी रूट वर्ड बताऊं ना इसके? अरे नहीं, रूट तो ये ऑलरेडी वर्ड जो बता डिसाइडेड है रही ना, हूँ, वो तो सही रूट सही। तो हमें पता ठीक है कि ठीक। नून फाइन है, आपने वजन इसका लिखना है। अब देखें, इसमें जो जायद हर्फ है वो वजन एज इट इज आते हैं ना, तो मैं वजन बताते हुए सबसे पहले क्या लिखूंगा। मनफात का वजन जब लिखूंगा तो सबसे पहले कौन सा हर्फ लिखूंगा। मीम मीम रूट का लिखेंगे हिस्सा सर। है या एक्स्ट्रा है। मीम नहीं, एक्स्ट्रा है सर। मीम एक्स्ट्रा है। तो वजन लिखते हुए मीम लिखेंगे कि नहीं। नहीं सर। नहीं लिखेंगे। वजन, चलें जी ये बताएं, किसी भी लफ्ज का वजन लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, क्या तरीका है। सर, रूट वर्ड्स के साथ लिखते हैं ना, क्या उनके मतलब रूट हरकत के देख साथ। के। मतलब जो रूट वर्ड होते हैं उसी के साथ आप वो लिखते हैं वजन। मैं समझा नहीं इस बात को। वजन लिखने का किसी भी लफ्ज का हमने एक तरीका पढ़ा है ना, वो क्या तरीका है। जो अभी हमने एक्सरसाइजेस की थी उसका पूछ रहे हैं सर आप? इसमें ये तो नहीं आएगा मन मन फाला। नहीं, मन मुझे लगता है फालुन। कहीं कहीं कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें जो आपके मतलब कवर नहीं हो सके, उसमें कहीं इशू है। अ, जो हमने बिल्कुल पहले दिन किया था कि वजन जो है उसमें फा इन लाम का मतलब क्या है, और जो किसी लफ्ज में जायद है उसको वजन में कैसे नोट करते हैं, वो लेक्चर्स आपने नहीं लिए। नहीं सर, ये नहीं, एक्स्ट्रा वर्ड्स तो समझ आ रहे हैं सर। चलें ये देखें, अभी जैसे यहाँ आपने नाफे का वजन क्या लिखा था। फाइल लिखा था। फाइल लिखा था। इसमें अलिफ यहाँ जी। क्यों लिखा है, वजन के अंदर अलिफ क्यों लिखा है।
सर ये इसमें सेकंड वर्ड था ना नाफे में। हाँ, और फा आइन लाम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वजन में? फा और आइन को। फा और आइन को नहीं, क्या मतलब? मतलब आइन और लाम आ रहा है ना उसमें। कोई बात कर रहा हूँ जो हमने बिल्कुल स्टार्ट पे किया था, कि हम जब किसी भी लफ्ज का वजन लिखते हैं तो उसका तरीका ये होता है ना कि जो रूट लेटर्स हैं उनकी जगह हम फा आइन लाम, ये तीन सिंबल के तौर पे तीन हर्फ यूज करते हैं। यानी फा रिप्रेजेंट करता है रूट के फर्स्ट लेटर को, आइन रूट के दूसरे हर्फ को, लाम रूट के तीसरे हर्फ को। ये वाली बात तो क्लियर है ना आपको? जी जी, ये तो क्लियर है सर। आपने जैसे अभी ये वजन मुझे बताए हैं नाफे के या नफुन के, ये बिल्कुल ठीक बताए हैं। इसके साथ एक चीज और थी ना, कि किसी लफ्ज में अगर रूट के अलावा कोई जायद हर्फ है तो उसको वजन में जी सर। एज इट इज लिखते हैं। मिसाल के तौर पे नाफे में अलिफ इजाफी हर्फ है, जायद हर्फ है, तो वजन में भी अलिफ ही लिखा जाएगा। ठीक है? इसी जी तरीके, जी इसी सर। बात को इधर अप्लाई कीजिए ना मनफात में। तो मनफात में जायद हर्फ कौन से हैं? कि पांच हर्फ में तो जाहिरी बात है दो हर्फ जायद होंगे ना, तीन हर्फ, रूट तो नून फा आइन है। मनफात में जायद हर्फ जी कौन सर, से हैं? मीम और ता। हाँ, तो वो वजन में एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है? अब जब मैं अच्छा मनफात का सर। वजन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? मन पहला सब, फाल मन। हाँ ये सबसे पहले मीम आएगा। ठीक है, तो जायद हर्फ है, मीम मीम। आ गया। जी। मीम आ गया, उसके बाद अब नून। नून फाइन हरूफ असली हैं, इनकी जगह जी। नून की जगह क्या लिखूंगा? नून की जगह फा लिखेंगे। यस, ठीक है। उसके बाद फिर रूट का सेकंड फिर लेटर है, आइन। उसकी जगह आइन ठीक है। आएगा। ठीक है, फिर फिर ये ता और लाम आ जाएगा। पहले क्या आएगा एक एक करके बताएं। फिर शायद ता आएगा फिर लाम आएगा। पहले नहीं, पहले ता क्यों आएगा? या पहले इधर लाम हाँ इस सॉरी, लफ्ज पहले में, लाम आएगा। हाँ, जी जी, जो पहले इस लाम आएगा लफ्ज फिर की ता में आएगा। उसकी प्लेसमेंट है वही उधर होगी ना, पहले लाम आएगा और फिर होता है। मफ़अलत। मनफात का वजन होगा मफअला। ठीक है, मनफातुन मफअलतुन। मफ़अलत का। अब ये बताइए, मैं इसी सेम रूट के लफ्ज आपको दे रहा हूँ अभी, मनाफे, इसका मुझे बताइएगा वजन। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? फिर मीम लिखेंगे सर। मीम, उसके बाद यही लिखेंगे ना। हम्म, ना कैसे लिख नहीं सकता हूँ, नहीं, वो वजन सॉरी लिखा। सॉरी, फा लिखेंगे। फा, एक एक हर्फ करके करें, उसको जल्दी ना किया करें। जब रशियन करेंगे ना तो फिर गलती होगी। ठीक ठीक। इसीलिए मैं जानबूझ के आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, शुरू में इसी तरह रखें, जल्दी मत कीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। फा के बाद क्या ठीक। लिखेंगे? फिर फिर आइन लिखेंगे। नहीं, यहाँ नहीं देखें नहीं, नून के पहले बाद। फिर अलिफ है ना, अलिफ लिखेंगे। हाँ, अलिफ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद अलिफ लिखने के बाद फिर फा लिखेंगे। फा नहीं लिखेंगे। अ, फा अ, की जगह हम कुछ नहीं और नहीं, लिखेंगे, क्योंकि फा की फा, जगह जी जी जी। हाँ, मनाफे क्या लिखेंगे, ये आइन लिखेंगे सर। आइन लिखेंगे, और एंड पे लाम। लाम आएगा। मफाइल। मफाइल, ठीक है। मैं आपको इसके लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका बस आपने अब ठीक बताना है, अब गलती नहीं करनी। या ये, हाँ ठीक है, ठीक है, सेम रूट है, नून फा आइन है रूट, बाकी हुरूफ जायद हैं। तो वजन इसका लिखवाएं जरा। सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे पहले अलिफ लिखेंगे। अलिफ, अलिफ के बाद अलिफ के बाद लिखेंगे मीम। हाँ हाँ, नहीं नून सॉरी, फा आइन, फे फा फा लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, अ, फिर नून ता फा है ना इसका, तो वो ना ना, नून फा रूट आइन वर्ड। सेम रूट चल रहा है, नफा नून फा आइन। नून फा ही नहीं चल रहा हाँ, है। ता फा लिखेंगे सर। फा तो हो गया, आइन लिखेंगे।
इन हम्म। तब। ये देखें, अलिफ हमने लिखा, चूंकि अलिफ जायद है। नून जी रूट का पहला हर्फ है, उसकी जगह हमने फा लिखा है। इसके बाद ता जी। जायद है कि असली हर्फ है? जायद है ना, जायद जायद है, जायद क्योंकि है। हमारे पास असली हरूफ तो नून फा आइन है। हाँ तो ता हाँ, तो लिखेंगे ते ना वजन ता पे भी। लिखेंगे, ता लिखेंगे। हाँ, जी, ता ठीक है। लिखेंगे, और फिर हाँ, फिर रूट का सेकंड लेटर है, उसके लिए हम फिर फा, सिंबल। फिर वो तो एज इट इज आएगा ना सर? नफा है ना, तो फा रूट का सेकंड लेटर है ना। मैं ये यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ जो रूट लेटर्स हैं। ठीक है, नून फा आइन, ये तीनों हर्फ रूट के हैं। तो ये ठीक तीनों, है। इनकी जगह हम सिंबल यूज करेंगे फा इन लाम का। बाकी हरूफ जायद है, वो एज इट इज लिख। ये गलत हो गया। जी जी बताएं। ता के बाद क्या आएगा फिर? ता के बाद आएगा वैसे अलग नहीं हो रहा, मैं इस आइन। तरह कर रहा हूँ। आइन आएगा, आइन। आइन आएगा फिर। आइन के बाद लाम। हम्म। वर्ड बाय, मैं एक इफ्तियाल। लेटर पूछ रहा हूँ ना, इफ्तिया लेटर बाय लेटर इफ बताएं। बीच में आपने छोड़ दिया ना फिर। फा के बाद कौन सा अच्छा, हर्फ है? फा। अलिफ अलिफ अलिफ। अलिफ है। और फिर जो लास्ट इसका है लेटर रूट का, लाम है। उसकी जगह हम लाम लिखेंगे, तो वजन लाम इंतिफा का लिखेंगे। होगा इफ इफ्तियाल। इफ्तिआल। अब बताएं, जो असल लफ्ज था जो हम देख रहे थे, यनफउ, इसमें जायद हर्फ कौन सा है? या। या। तो अब इसका मुझे वजन लिखवाएं यनफउ का। सबसे पहले हम लिखेंगे, या तो ऐसे ही लिख देंगे सर। या लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फिर अ, अ, उम, फा लिखेंगे नून की जगह। पा लिखेंगे, फिर और फिर आइन लिखेंगे और लाम लिखेंगे। और यनफउ का वजन होगा यनफा, यफअलु। यफअलु। ठीक है, अब मैं जब भी जैसे आपसे किसी लफ्ज का वजन पूछूं, तो आपने इस तरीके से उस लफ्ज में फाइन लाम रख के बताना है कि उसका वजन क्या है। जायद हर्फ एज इट इज लिखें, रूफ असली की जगह फाइन लाम लिखें। यनफउ का वजन है यफअलु। ठीक है। ठीक है। अब मुझे जी। बताइएगा कि यफअलु कितने हर्फ, या इसका माजी क्या हो सकता है यफअलु का? या ये बता दें कि ये सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मजीद फी में से है? यनफाउ का सलासी मुजर्रद है ना सर? ठीक है, इसका माजी क्या होगा? क्योंकि यफअलु सुलासी मुजर्रद का वजन है, ठीक है। हम्म। और यनफा ये फतह कौन से बाब से हो सकता है? अच्छा। जी, सुलासी वही मुजर्रद के देखते किस हैं बाब सर। से आ सकता है? दरबा यदरिबु से। दरब यदरिबु। यदरिबु और यनफउ डिफरेंट है या जैसे हैं इनका वजन? नहीं नहीं नहीं, यफ्तहू से आएगा सर। यफ्तहु। फतह, हाँ जी, हाँ, तो यफ्तहू से आएगा। बिल्कुल, फतह यफ्तहु से ही है। तो इसका माजी क्या जी, होगा? फतह। इसका माजी होगा यनफा। हम्म। नहीं नहीं, नफा। नफा, यस, नफा यनफउ। ठीक है, नफा यनफउ। अब ठीक है, यनफाउ से जरा बाकी सीगे बनाइएगा जिसकी गर्दान है, यानी तस्निया, मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, वो जरा बताइए सारे लफ्ज। यनफू। हम्म। यन यन यनफान। यनफानी। यनफानी, ठीक है। यनफरूना। नहीं। हाँ। यनफाउना, ठीक है। अम, तफ तफरऊ।
इसमें तो लफ्ज़ ही बदल गया बिल्कुल। यनफाउ। हाँ। लफ्ज़ का खानदान भी हाँ। बदल गया और वो फैसले ही बदल नहीं गए सर, ना। ता आएगा इसके आगे ना, वो है वाहिद मुअन्नस। हम्म। तो इसको होगा तनफाउ। तनफाओ ठीक है। जब आप ये कर रही हो ना प्रैक्टिस, तो लिख लिया करें जैसे अपने पास कम से जी। कम पहला सीगा जरूर। अच्छा, तनफाओ। हाँ। फिर। अब है यनफुरान, यनफुरानी। हम्म। नहीं, तनफुरानी। इसमें रा कहाँ से आ गया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। रा की आवाज यन क्यों हो यन रही है? तनफाउ था, सॉरी, वो तनफाउ से आगे क्या होगा? तनफानी, तनफानी। तनफानी ठीक है। फिर। हाँ। अ, अ, अब है यनफाउ, यनफान, हम्म। यनफा, यन यन यनफाउना। नहीं, नून से पहले वाले हर्फ पे क्या हरकत होती है? यनफाना। हाँ हाँ हाँ, यनफअना। आखिरी साकिन करके यन फिर नून ऐड। जी जी, यन यन यनफाना। अ, यन तनफाउ, 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 तनसुरानी। नहीं नहीं, हम्म। तन चले, आप लिख के रुको कर जरा। लीजिएगा, मैं आपसे फिर कल ये नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उसमें सुनूंगा, ठीक है? लेकिन जी मैं लिख लेती प्रैक्टिस हूँ की सर, मैं बहुत लिख रही कमी हूँ है। अभी। आप लोग मुझे लगता है नहीं कर रहे, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। सर सर मैंने बहुत करते दोनों हैं, मुश्किल हो पता जाएगा नहीं आगे भूल चल के। जाते हैं सर। सर चले, मेरी कोई तो नहीं, सुन लें। मजीद वक्त दीजिए। आज ही उम्र कुलसुम। मैंने दोनों गिरदाने लिखी हैं सर। सर नब्बा युनब्बी, हम्म। ये फ़अला युफ़अलु तफ़ईल के वजन पे है। बिल्कुल ठीक है। जी सर, ये क्लास जरूरत इसका मस्तर क्या सीखी में होगा? से है। तनबीह। हाँ, तंबी उन ठीक है। लेकिन जनरली जो ऐसे अफ़ाल आते हैं तफील से जिनमें आखिरी हर्फ हमजा हो रूट का, उनको तफ़इला पे जी यूज सर। करते हैं। तो तंबिअह, तफ़इला के वजन पे मस्तर आता है, नो तंबिअतुन। अच्छा ठीक है, जी सर। क्योंकि इसमें आसानी है। नब्बा। ये आगे बताइएगा माजी और जी मुजारे की तस्वीरें। नब्बा युनब्बी, हम्म। नब्बा युनब्बिआनी, युनब्बिऊना, तुनब्बिउ, तुनब्बी तुनब्बाआन, तुनब्बिआनी, ठीक है। तुनब तुनब्बिना। हम्म। ये गायब किसी है? था नहीं है स्टार्ट। सर सर युनब्बिना। अब ठीक है। तुनब्बिउ, तुनब्बिआनी, तुनब्बिऊना, तुनब्बिईना, तुनब्बिआनी, तुनब्बिऊना, हम्म। उनब्बिउ, हम्म। आखिरी नहीं, जमा मुन्नस गायब फिर पढ़े। जमा मुअन्नस, अ, तुनब तुनब्बिना, हाँ अब ठीक है। उनब्बिउ, नुनब्बिउ। सर ये ठीक है, मैं पता ठीक है, लूंगी। सही है, माशाल्लाह, ठीक हो गया, जबरदस्त। जी रमजान, माजी। ठीक हो गया। सर। जी शेख साहब। जी जी सर जी। ठीक। युशरिकूना जी। युशरिकूना जो है ना जमा मुज़क्कर गैबीन है, और फ़ेल मुज़ारी मजहूल, सुलासी मुजर्रद सहीह, असबाब फ़ाले फ़िल मिस्ल ज़रब मजहूल क्यों यज़रिब। कहा है आपने इसको? क्योंकि शेख मोहतरम, युशरिकूना जो है ना वो या पे ज़म आया है। यहाँ पे दम्मा है, तो मजहूल के लिए या का दम्मा होना काफी होता है क्या? जी शेख साहब। मजहूल के लिए या पे दम्मा होना काफी है? अलामत मुजारे पे दम्मा हो तो फेल मजहूल होगा।
اس کا جی شیخ صاحب وہ معلوم فعل مجہول نہیں ہے، معلوم، معلوم ہے۔ معلوم ہے؟ تو آپ نے رائے کیوں بدل لی؟ کیسے پتا چلا آپ کو کہ معلوم ہے مجہول نہیں ہے؟ نہیں، یہ مجہول ہے شیخ صاحب۔ مجہول ہے، چلیں یہ والی بات مان لیتے ہیں، تو کیسے پتا چلا کہ مجہول؟ یا پہ ضم ہے نا شیخ صاحب، یا پہ ضم آیا ہے اب اور میں وہی معلوم میں پوچھ رہا یا ہوں پہ۔ کہ مجہول کا کیا اصول ہوتا ہے کہ علامت مضارع پہ ضمہ ہو تو مجہول ہوتی ہے، فعل مجہول ہو نہیں، گیا؟ وہ چار حرفی ہوتے ہیں نا۔ تو پھر مجہول کون سا لفظ ہوتا ہے؟ اتنا تو پتہ ہے شیخ صاحب کہ یہ مجہول ہے، کیونکہ یضرب یضربان تو یضربون۔ وہی میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ مجھے بھی بتائیں نا کہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ مجہول ہے تو کس بیس پہ آپ کو لگتا ہے کہ مجہول ہے؟ کیوں ہے مجہول یہ؟ مجہول اس وجہ سے کہ یا پہ ضم ہے اور معلوم پہ یا پہ ضم نہیں ہے، ادھر معلوم پہ، یا پہ فتح ہے۔ معلوم پہ یضرب، یا پہ ضمہ نہیں ہوتی؟ اچھا، یہ پڑھیے گا ذرا جو باب تفیل ہے اس کا ماضی اور مضارع کیا ہوتا ہے؟ باب تفعیل فعل یفعل، یا پہ ضمہ پڑھی ہے آپ نے یا کوئی اور حرکت پڑھی ہے؟ ضمہ۔ ضمہ ہے نا؟ تو یہ مجہول کا وزن ہے معلوم کا وزن ہے؟ فعل یفعل جو ہے یہ مجہول کا مضارع مجہول کا وزن ہے؟ ابھی جو میں نہیں۔ مزید فی کے اوزان پڑے ہیں سارے، وہ مجہول کے وزن ہے کیا ساری؟ نہیں، وہ تو معلوم کے تھے۔ معلوم کے ہے نا؟ تو پھر یہاں پہ ضمہ جی، کیوں آ رہی ہے؟ یہ چار حرفی ہے اس وجہ سے۔ پھر ان دو باتوں میں تضاد نہیں ہے؟ معلوم ہے لیکن چار حرفی ہے اس وجہ سے شیخ صاحب۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ علامت مضارع جو ضمہ آ رہی ہے اس پہ وہ چار حرفی کی وجہ سے آ رہی ہے یا مجہول ہونے کی وجہ سے آ رہی اس میں صرف یہ جو ہے نا چار حرفی میں صرف ضم آئے گا، باقی سب میں وہ پتہ آئے گا۔ ہے؟ چار حرفی میں معلوم اور مجہول کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی یفعل جی، معلوم بھی ہو سکتا ہے اور مجہول بھی، کہ معلوم اور مجہول ان کا دونوں کا مختلف ہوگا؟ فاعل، اس کا وہ مجہول کس طرح ہوگا شیخ صاحب؟ یہ جب نہیں معلوم ہو۔ نہیں، تو پھر سوچیں نا اس پہ۔ چلیں یہ آپ نے مجھے سوچ کے نا اگلی کلاس میں جواب دینا، میں آپ سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ جی شیخ کہ صاحب۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجہول ہے یا معلوم ہے؟ اس کو آپ نے دوبارہ دیکھنا، یہ مجہول نہیں ہے تو، لیکن بہرحال اس یہ کا اگلی کلاس میں بتائیے گا۔ وہ دوسرا یہ کہ باقی اسٹوڈنٹس جب کر رہے ہوں تو آپ مطلب ہر کسی کو اپنے کام پہ توجہ کرنی چاہیے اس وقت، اگر ایک اسٹوڈنٹ سے غلطی ہو رہی ہے جب آپ کی باری آتی ہے آپ سے بھی ہوتی ہے، سب سیکھنے کے لیے نا ادھر، تو اگر ایک طالب علم کا وقت زیادہ بھی لگ رہا ہے تو اس کا حق ہے، اور یہ حق میرے علاوہ کسی کو نہیں حاصل اس کلاس میں کہ میں کسی کو ٹوکوں یا یہ کہوں کہ آپ نے زیادہ وقت لیا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے سب کو، اور دیکھیں نا جی جی آپ نے بھی جب بتایا تو غلط بتایا، اور اتنی دیر میں بھی آپ ٹھیک نہیں کر سکے اپنے جواب کو، تو خیر اس پہ سوچیے اور انشاءاللہ اگلی شیخ کلاس صاحب، میں ڈسکس کریں گے۔ جی اس کا یہ جو واحد اور تسنیہ ہے وہ یشرک و یشرکان آتا ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے اب مجہول والی پہ بات کریں گے نا۔ واحد و تثنیہ تو مجہول و معلوم ہو وہ تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اس میں گردان میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، وہ تو ایک ہی جیسی ہے دونوں، لیکن پہلے اب اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ معلوم ہے کہ مجہول، اور دونوں میں یہ فرق تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کرتے ہیں۔